Good morning, children. In previous class, I have given half worksheet, no? September worksheet. Before that, I'll give that tenses, remaining tenses answers. Okay, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ sentences ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, you all written, no? Till 1 to 5th, I have given answers in last class. Today 6th. Okay, this is वर्तमान काल. वर्तमान means present. भूतकाल means past. भविष्यत काल means future tense. Okay, future tense. This is past and this is present. Now first sixth one, I love to play cricket. I love to play this is not worksheet, children. This is your that वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ 6th 1 to 10th ವರೆಗೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. After that I'll give you from 4th main worksheet till 3rd main we have finished in last class. After that this one here, I love to play cricket. वर्तमान काल, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है. मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है. दिस इज प्रेजेंट टेंस. पास्ट टेंस ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಭೂತಕಾಲ means past tense. मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था. मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था. Now भविष्यत काल means future tense. मुझे क्रिकेट खेलना पसंद होगा. प्रेजेंट टेंस, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है. आई लव टू प्ले क्रिकेट. आई वॉज लविंग टू प्ले क्रिकेट मीन्स मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था. आई विल लव टू प्ले क्रिकेट मीन्स मुझे क्रिकेट खेलना पसंद होगा. Okay, 3 sentences. Now next, pause the video and complete this one. Next sentence, my father is going to office. 7th one. My father is going to office. मेरे पिताजी दफ्तर जाते हैं. प्रेजेंट टेंस, मेरे पिताजी, ऑफिस मीन्स दफ्तर. मेरे पिताजी दफ्तर जाते हैं. मेरे पिताजी दफ्तर जाते हैं. दिस इज प्रेजेंट टेंस. नाउ पास्ट टेंस ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. मेरे पिताजी दफ्तर जाते थे. My father was going. Okay, मेरे पिताजी दफ्तर जाते थे.
मेरे पिताजी दफ्तर जाते थे. My father was going to office. Was ಬಂದ್ರೆ that is past tense. Is ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ that is present tense. Now my father will go to office. मेरे पिताजी ऑफिस जाएंगे. मेरे पिताजी दफ्तर जाएंगे. ऑफिस also you can write, okay? मेरे पिताजी दफ्तर जाएंगे. मेरे पिताजी दफ्तर जाएंगे. My father is going to office. मेरे पिताजी दफ्तर जाते हैं. My father was going to office. मेरे पिताजी दफ्तर जाते थे. My father will go to office means मेरे पिताजी दफ्तर जाएंगे. Okay. Now 8th sentence. You check your answers. If it is wrong, correct it. Okay, children. See, this is not your worksheet. Worksheet ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 10th one ಆದ್ಮೇಲೆ worksheet ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Okay. Eighth one. My sister is playing outside. My sister is playing outside. My sister is playing outside. वर्तमान कालದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? मेरी बहन बाहर खेल रही है. मेरी बहन. बहन ಅಂದ್ರೆ sister. मेरी बहन बाहर means outside. बाहर खेल रही है. This is present tense. Okay. Now my sister was playing outside. Was playing outside means मेरी बहन बाहर खेल रही थी. मेरी बहन बाहर खेल रही थी. भविष्य कालದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? My sister will play outside. मेरी बहन बाहर खेलेगी. My sister is playing outside. मेरी बहन बाहर खेल रही है. My sister was playing outside. मेरी बहन बाहर खेल रही थी. My sister will play outside. मेरी बहन बाहर खेलेगी. Okay. Now 9th one. Pause the video and complete, children. Okay. I am writing a letter to my grandfather. 9th one. I am writing a letter to my grandfather. I am writing a letter to my grandfather. ಇದನ್ನೇ वर्तमान कालದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? मैं मेरे दादाजी को खत लिख रहा हूँ. मैं मेरे दादाजी और दादाजी you can write. मेरे दादाजी को
मैं मेरे दादाजी को मेरे बिकॉज बरीಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ मेरे दादाजी को खत लेटर मीन्स खत लेटर खत लिख रहा हूँ मैं मेरे दादाजी को खत लिख रहा हूँ ಅಲ್ಲೇ ಗರ್ಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಖ್ ರಹಿ ಹೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗರ್ಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಓಕೆ ರಹಿ ಹೂ ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಬಡಿ ಇ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗರ್ಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಫ್ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಹಾ ಹೂ ಬರಿಬೇಕು ಗರ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ರಹಿ ಹೂ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗರ್ಲ್ ನೋ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರಹಿ ಹೂ ಓಕೆ ನೀವು बॉय ಆಗಿದ್ರೆ रहा हूँ ಬರಿಬೇಕು मैं मेरे दादाजी को खत लिख रहा हूँ ओके नो भूतकाल खत लिख रहा था और खत लिख रही थी मैं मेरे दादाजी को खत लिख रही थी ओके मैं मेरे दादाजी को खत लिख रही थी दिस इज कंटिन्यूस टेंस सो यू हैव टू राइट रही थी और लिखी थी नु बरुते ओके बरदिद्दे अंतानु बरुते अथवा बरिता इद्दे ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ओके मैं मेरे दादाजी को खत लिख रही थी और ನೀವು ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು लिख रहा था ओके रहा था हियर आल्सो आ की मात्रा एंड हियर आल्सो आ की मात्रा बॉय इद्रे ओके इफ यू आर राइटिंग ನೀವು ಗರ್ಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ರಹಿ ಥಿ now next I was writing a letter to my grandfather sorry I will write a letter to my grandfather ओके मैं मेरे दादाजी को ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ खत लिखूंगा स्टिल नॉट रिटर्न लिखूंगा मैं मेरे दादाजी को खत लिखूंगा आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई ग्रैंडफादर मैं मेरे दादाजी को खत लिख रही हूँ आई वॉज राइटिंग अ लेटर टू माई ग्रैंडफादर मैं मेरे दादाजी को खत लिख रही थी आई विल राइट अ लेटर टू माई ग्रैंडफादर मैं मेरे दादाजी को खत लिखूंगा हियर गर्ल नो शी हियर ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ लिखूंगी बॉय इज देयर मींस लिखूंगा गर्ल इज देयर मींस लिखूंगी अंडरस्टूड ನೀವು ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು लिख रहा हूँ लिख रही थी लिखूंगी लिखूंगा सॉरी now 10th one last my son lives in London my son lives in London ಇದನ್ನ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ मेरा बेटा लंदन में रह रहा है रहता है ओके मेरा बेटा लंदन में रहता है past tense ಅಲ್ಲಿ my son was living in India in London means मेरा बेटा लंदन में रहता था
पास्ट टेंस दिस इज। मेरा बेटा लंदन में रहता था। my son will live in London means मेरा बेटा लंदन में रहेगा। राग बरीरी मेरा बेटा नॉट मेरे बेटा। मेरा बेटा लंदन में रहेगा। ओके दिस वन फिनिश्ड। ओके अंडरस्टूड ना। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल में कैसे सेंटेंसेस लिखते हैं, कैसे वाक्य बनाते हैं। आप आपका जो काम हुआ है तो उसको था थी लिखना है। और ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು रहेगा करेगा। ओके लाइक दैट। एंड वर्तमान काल इತ್ತು ಅಂದ್ರೆ हे ಬರಿಬೇಕು। ओके रहता है, करता है, ओके कर रही है, like that. Now worksheet I will continue. Make a sentences. Okay new sentences try ಮಾಡಿ ಅಥವಾ what you are doing daily from morning to evening, what you are doing, write one page in Hindi. Okay ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೈಲಿ ಡೈರಿ ತರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ। ಓಕೆ now worksheet से continue है। worksheet September 21. Okay till fourth till third main I have finished now. Once I will read. See शब्दार्थ लिखिए। नृप यानी राजा किंग, नदी यानी दरिया रिवर, ऋषि यानी मुनि सेंट, कृपाण यानी तलवार सॉर्ड, तृण यानी घास ग्रास, कुटिया यानी झोपड़ी हट, मेला यानी उत्सव फेर, जात झूला यानी हिंडोला फेर सॉरी स्विंग, झूला यानी हिंडोला स्विंग, कैद खाना यानी जेल प्रिजन, डकैत यानी डाकू डकैत। ओके नाउ जोड़कर लिखिए। कृपालु, सृजन, लालटेन, कनेरा, बैंगन, तैराक। ओके you have to practice some more join the letters words also. Okay text book ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ practice ಮಾಡಿ। now वचन बदलिए। चूहा वचन बदलिए means one to many or singular plural. ओके चूहा चूहे, लड़का लड़के, कमरा कमरे, बच्चा बच्चे, तोता तोते, बेटा बेटे, आंख आंखें, छाता छाते। ओके नाउ फोर्थ में right below only. Okay in one book only you have to continue. फोर्थ में खाली स्थान भरिए। खाली राइट नीटली खाली स्थान भरिए। fill in the blanks. Okay first one leave line after third main. Okay डैश भागकर छिप गया। डैश भागकर छिप गया। यार ओड होगी अटಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು। it is in your textbook only. fill in the blanks for the exercise only. that is it. मृग answer is मृग। सेकेंड वन मृग भागकर छिप गया। ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಮೃಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಮೃಗ್ ಭಾಗಕರ್ छिप गया, ಮೃಗ್ ಭಾಗಕರ್ छिप गया ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ। नृप डैश मत निकाल। डैश मत निकाल ಏನು ರಾಜಾಗ ಏನ್ ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ತಲ್ವಾರ್ ಅಲ್ವಾ? ತಲ್ವಾರ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಕೃಪಾಣ್। नृप कृपाण मत उठा।
नृप कृपाण मत निकाल। थर्ड वन, डैश हल चला। डैश हल चला इन बरुते कृषक हल चला। कृषक हल चला। डैश पर चढ़ फल खा। डैश पर चढ़ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಫಲ್ खा। वृक्ष पर चढ़ ओके ನೀವು वृक्ष ಬರಬೇಕು बिकॉज इट इज रू की मात्रा लेसन नो पेड़ यू कांट राइट हियर वृक्ष। वृक्ष पर चढ़ फल खा। फिफ्थ वन, डैश अब महल चल। डैश अब महल चल यारिग महल नडीगे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ नृप राजा। नृप अब महल चल। Still more is there. Okay. Here first one, खाली स्थान भरिए। डैश भागकर छिप गया। मृग भागकर छिप गया। नृप डैश मत निकाल। नृप कृपाण मत निकाल। डैश हल चला। कृषक हल चला। डैश पर चढ़ फल खा। वृक्ष पर चढ़ फल खा। डैश अब महल चल। नृप अब महल चल। नृप अंद्रे ಏನು ರಾಜ किंग। वृक्ष यानी पेड़, कृषक यानी फार्मर, कृपाण यानी स्वॉर्ड तलवार, मृग यानी एनिमल मृग deer. Shall pause the video and complete children. Still more are there. 12 fill in the blanks are there. Sixth one, रमा मेले से डैश लाई। रमा it is also it is in your textbook. Okay, textbook exercise. रमा मेले से, मेला means fair, जात्रे उत्सव। रमा मेले से डैश लाई। क्या लाई रमा मेले से? सेब लाई। रमा मेले से सेब लाई। सेवेंथ वन, डैश ने सर्कस में करतब दिखाए। डैश ने सर्कस डैश ने सर्कस में करतब यानी आटा करतब दिखाए। डैश ने सर्कस में करतब दिखाए। कौन दिखाए सर्कस में करतब? शेर, लायन। डैश ने सर्कस में करतब दिखाए। शेर ने सर्कस में करतब दिखाए। सेवेंथ वन, आकाश में डैश चमक रहे थे। आकाश में डैश चमक रहे थे। आकाश में डैश चमक रहे थे। आकाश में तारे चमक रहे थे। तारे यानी स्टार्स, नक्षत्र। आकाश में तारे चमक रहे थे। नाइन्थ वन, कैलाश बैलगाड़ी पर डैश।
कैलाश बैलगाड़ी पर डैश। कैलाश बैलगाड़ी पर बैठ, सिट। कैलाश बैलगाड़ी पर बैठ। सुबह सुबह डैश कर। सुबह सुबह डैश कर। ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು? सैर कर। सुबह सुबह सैर। स के लिए आई की मात्रा र, सैर। सैर यानी वॉक। सुबह सुबह सैर कर। 11th वन, कैद खाने से डैश भाग गया। कैद खाने से डैश भाग गया। कैद खाने से डैश भाग गया। कैद खाने से कौन भाग गया? कैदी। कैद खाने से कैदी, कैदी यानी प्रिजनर। कैद खाने से कैदी भाग गया। लास्ट वन, you write slowly without doing mistakes. okay, pause ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. डैश का गाना सुन। डैश का गाना सुन। किसका गाना सुन? मैना का गाना सुन। मैना बर्ड। मैना का गाना सुन। Yes, 6th one I am reading again. Pause the video and complete say. रमा मेले से डैश लाई। रमा मेले से सेब लाई। रमा मेले से क्या लाई? रमा मेले से सेब लाई। डैश ने सर्कस में करतब दिखाए। शेर ने सर्कस में करतब दिखाए। शेर ने सर्कस में करतब दिखाए। आकाश में डैश चमक रहे थे। आकाश में तारे, आकाश में राइट हियर, आकाश में तारे चमक रहे थे। आकाश में तारे चमक रहे थे। कैलाश बैलगाड़ी पर डैश। कैलाश बैलगाड़ी पर बैठ। सुबह सुबह डैश कर। सुबह सुबह सैर कर। सुबह सुबह सैर कर। कैद खाने से डैश भाग गया। कैद खाने से कैदी भाग गया। डैश का गाना सुन। मैना का गाना सुन। okay, now this main you complete. Next main I'll give in the next class. Okay, now today's assignment. Shall I rub this one? Pause the video and complete, children. Read September worksheet. Okay, till today what I have given now in September worksheet you have to read, means by heart, and writing, for writing 1 page copywriting. Only copywriting writing is homework. This one you have to worksheet practice. Okay, children. Okay, children. Thank you.